وادی کشمیر میں آج ملیٹنٹوں نے 2 مقامات پر حملے کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے۔ ملیٹنٹوں نے آج شام سری نگر میں میر جان پورہ نوکدل سری نگر میں ایک عام شہری کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ ہلاک کیے گئے شہری کی پہچان رؤف احمد خان کے طور پر ہوئی ہے۔ جس علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے وہ عیدگاہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں آتا ہے۔ اگرچہ رؤف احمد کو پہلے شدید زخمی حالت میں SMHS اسپتال منتقل کیا گیا تھا مگر وہاں سے اسے مردہ قرار دیا گیا۔ پولیس نے اس حوالے سے کیس درج کیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ اس بیچ آج ہی اننت ناگ کے بجبہاڑا میں ملیٹنٹوں نے سیکیورٹی فورسز کی پارٹی پر حملہ کر دیا۔ اس دوران جموں کشمیر پولیس کا ایک ASI شدید طور سے زخمی ہو گیا تھا، وہ بعد میں دم توڑ بیٹھا۔ شہید ASI کی شناخت محمد اشرف کے نام سے ہوئی ہے۔ اسے جب اسپتال منتقل کیا گیا تو اس کی حالت کافی نازک تھی۔ زخمی ASI کا بہتر علاج کرنے کے لیے اسے سری نگر ریفر کیا جا رہا تھا۔ ملیٹنٹ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئی اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اب علاقے میں محاصرہ کر کے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ہند نیپال سرحد پر ضلع ڈوڈا کے رہنے والے SSB جوان کی موت ہو گئی۔ شہید محمد حسین پیر کی دیر رات ڈیزل اسمگلر کا پیچھا کر رہے تھے، تبھی وہ اچانک ندی میں ڈوب گئے۔ دراصل وہ ندی کے گہرے حصے میں گر پڑے تھے۔ کولوی ایریا میں واقع گاؤں بٹائی ڈیہا میں اسمگلروں کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا تھا۔ محمد حسین کو اسپتال میں داخل کرا گیا تھا، تاہم انہوں نے دوران علاج دم توڑ دیا۔ پیراملٹری فورس SSB نے بھاری مقدار میں اسمگل کیا جا رہا ڈیزل برآمد کر لیا ہے۔ ڈیزل منتقل کرنے کے سامان بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ شہید ہونے والا جوان ضلع ڈوڈا کے دیہی علاقے چروانیہ کے رہنے والے تھے۔ اوڑی کے ہتھلنگا گاؤں میں ایک 20 سالہ لڑکی بارودی سرنگ کی زد میں آنے سے شدید طور پر زخمی ہوئی۔ معصومہ بانو نامی لڑکی اپنے گھر کے قریب مویشیوں کو لے کر گئی تھی۔ اس دوران وہ بارودی سرنگ کی زد میں آنے سے شدید زخمی ہو گئی۔ SDH اوڑی کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ لڑکی کی ایک ٹانگ میں شدید چوٹ آئی ہے جبکہ بائیں پیر مکمل طور پر کٹ گیا ہے۔ زخمی خاتون کو بہتر علاج کے لیے GMC بارہمولہ منتقل کر دیا گیا۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے مودی حکومت پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ وہ مختلف طبقوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سنجوا جموں میں پارٹی کارکنوں کی ایک ریلی سے خطاب کر رہی تھیں۔ مفتی نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ حکومت بے روزگاری پر قابو پانے اور ملک کی اقتصادی حالت بہتر کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ مفتی نے کہا کہ 370 کی منسوخی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے اور لوگ بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں تبدیلی لانے کے مودی حکومت کے دعووں پر بھی محبوبہ مفتی نے سوال اٹھائے۔ آج ہمارا ملک بھوکمری میں پاکستان سے بھی آگے ہے، نیپال سے بھی آگے ہے، بنگلہ دیش سے بھی آگے ہے۔ اتنی بھوکمری ہمارے ملک میں، ہم GDP میں بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں۔ ہم جو جموں کشمیر کی ریاست جس کا GDP 2019 میں مہاراشٹر سے بھی زیادہ تھا، آگے تھا، آج سب سے زیادہ بے روزگاری 22% جموں کشمیر میں ہے۔ آج سب سے مہنگائی زیادہ 7% جموں کشمیر میں ہے۔ جیسے بیگ صاحب نے صحیح فرمایا، کہا کہ جموں کشمیر کی سمسیا سب سے بڑی 370 سے ہے۔ یہاں روزگار نہیں مل رہا ہے، یہاں دودھ کی ندیاں نہیں بہ رہی، یہاں ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے 2019 سے 19 تک اگر 1000 نوکریوں کے لیے جموں کشمیر کے لاکھ نوجوان اپلائی کرتا تھا، آج ان 1000 نوکریوں کے لیے پورے ملک کے لاکھوں نوجوان اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کی باری کہاں سے آئے گی؟ آپ کو بتایا جاتا تھا کشمیری آپ کی نوکری کھاتا تھا۔ آج دیکھیے، ہم تو کشمیر میں سمجھتے تھے کہ ان کی نظر کشمیر کی زمین پہ ہے، مگر جموں کا کیا حال، کٹھوا کا کیا حال، جہاں لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں، جن کی زمینیں چھین رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ دفعہ 370 کی بحالی تک اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ مفتی نے کہا کہ کسانوں کے کامیاب پرامن احتجاج سے سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قانون لوگوں کے
खिलाफ हो वो कानून हमारे आईन के खिलाफ होता है। मगर उन किसानों को मैं सलाम करती हूं, उनको खालिस्तानी बुलाया, क्योंकि इनके सामने जो खड़ा हो जाता है, बात करता है, उसको आतंकवादी बुलाते हैं, एंटी नेशनल बुलाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, मुसलमान हमको पाकिस्तानी बुलाते हैं। मगर जब इन्होंने हमारे किसानों को खालिस्तानी बुलाया, वो डरे नहीं, उन्होंने पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, डट के मुकाबला किया और आज उनको कामयाबी मिली, जिसके लिए जितनी भी उनको मुबारकबाद दी जाए वो कम है। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने लोगों से तलकीन की है कि वो ऐसे अनासर को मुस्तरद करें जो मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में लोगों को कोरोना, बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मसाइल के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हुकूमत को निशाना बनाते हुए आज़ाद ने कहा कि लोगों को मजहब और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर देखने और सबके साथ इंसाफ करने में नाकाम होने वालों को इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मुल्क और जम्मू कश्मीर पहले जैसे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क पीछे ही जा रहा है। आज़ाद ने भद्रवाह में एक बड़ी अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में लोग बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत से परेशान हैं। खास तौर से किया, जाहिर है अपना डिस्ट्रिक्ट का अपना एरिया है, तो उनकी हाल चाल पूछा, खैरियत के बारे में पूछा, भाईचारे कायम रखने के बारे में बात की। इकट्ठे हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठे रहना चाहिए। ये एक बहुत बुरा समय है पूरी दुनिया के लिए। इस वक्त हमारी लड़ाई होनी चाहिए कोविड के खिलाफ लड़ने की, गरीबी के खिलाफ लड़ने की, जहालत के खिलाफ लड़ने की, बेकारी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की, महंगाई के खिलाफ लड़ने की। ये वक्त नहीं है कि हम हिंदू और मुसलमान आपस में बटे रहें और बांटते रहें, एक दूसरे को गाली दें। हमने ये जो आर्जी रेत के पहाड़ कई लोगों ने बनाई है राजनीति के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच में, उन पहाड़ों को हमें गिरा देना चाहिए और हमें नज़दीक आना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने हदबंदी कमीशन की तजावीज़ का खैर मकदम किया है। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि SC/ST तबके के लिए असम्बली हलकों में रिजर्वेशन एक खुश आइंद कदम है। इससे ये तबके सियासी तौर पर बाख्तियार होंगे। रैना ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों ने इन तबकात को उनके सियासी हुकूक से महरूम रखा था। उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी से उनको सियासी हुकूक मिलने की राह साफ हो गई है। पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर ST कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशंस मिली है। 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर जो ST कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी कम्युनिटी के लोग हैं, वो मांग करते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर STs को पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो कि पूरे देश में थी। चूंकि यहां धारा 370 लगाई हुई थी और यहां के जो हुक्मरान थे NC कांग्रेस और PDP के, जिन्होंने 70 साल यहां गवर्नमेंट की, उन्होंने कभी भी गुजर बकरवालों को, गद्दी सिपियों को ST की जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे देश में थी, यहां कभी लागू नहीं होने। रविंद्र रैना ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात की मुखालफत करने पर गुपकार अलायंस के लीडरान को निशाना बनाया। जब उनका हक देने की कोशिश की तो यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP के नेताओं को तकलीफ हो गई। यह स्वाभाविक है, क्योंकि NC कांग्रेस और PDP ये किसी के साथ कभी इंसाफ नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान डिलिमिटेशन और दीगर सियासी मामलात पर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। उनका कहना है कि कई सियासी जमातें डिलिमिटेशन की मुनासिबत से नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही हैं। उमर ने ताहम मीटिंग में अपनी पार्टी के अरकान की शिरकत का दिफा किया। न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम। डिलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल्स को लेके जम्मू कश्मीर में हर तरफ बहस चल रही है, कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ भी जारी हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, साबिका जम्मू कश्मीर रियासत के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब। उमर साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। जब से डिलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल्स की बात आई है और 6 सीट जम्मू में और 1 कश्मीर में,
आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने एक ऐसे अमल को जिसको आपने पहले इलिजिटिमेट कहा, गैर कानूनी कहा, उसमें आपके मेंबरान ने जाके उसको लेजिटिमाइज कर दिया, कानूनी जवाब पेश किया। आप क्या कहेंगे? हमने डिलिमिटेशन कमीशन को वही कहा जो हम बाहर लोगों को कहते हैं, और जो लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों की आदत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाना। अगर हमारी गैर मौजूदगी में ये रिपोर्ट पेश किया गया होता तो यही लोग हमें कहते कि देखें अब ये एक मौका था, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले 3 मेंबर कश्मीर के थे, उन्होंने जाके कश्मीर की बात क्यों नहीं की। वहाँ कश्मीर जो है मेज़ पे जो है उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं रही। जम्मू के 2 मेंबर थे, कश्मीर का कोई था नहीं। तो जब हम वहाँ पे गए, अब ये लोग कहते हैं आप वहाँ गए क्यों। अब हमारा जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ के लोगों की बात जो है वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। और इससे साथ साथ मैं कहता हूँ सिर्फ कश्मीर की बात नहीं, जम्मू में भी कुछ लोग इस रिपोर्ट से नाराज़ हैं। दिल्ली में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसी शख्सियत दिल्ली में इस फैसले के खिलाफ बयान नहीं दे पाते हैं, तो मीडिया क्या करे? हमने बयान दिया ना, अब अगर आपने उसको कवर नहीं किया, आपने ट्वीट किया, हमने कवर किया, बस तो ठीक है ना। डॉक्टर साहब का कोई बयान ही नहीं आया। डॉक्टर साहब क्यों बार बार जब मैंने बात की, जब मेरे पार्टी के साथियों ने बात की, तो उसके बाद क्या कहने की ज़रूरत है। चाहे आप हूँ चाहे महबूबा मुफ्ती, शुरुआत से ही जब से ये कमीशन बना तो सभी ये कह रहे थे कि ये एक पार्टी के लिए बनाया गया है। और पिछली बार अगर आपको याद हो, आप वज़ीर आज़म से मिले 4 अगस्त या 3 अगस्त को, फिर नतीजा क्या हुआ? दूसरे दिन मैंने बार बार ये कहा कि हम धोखा खा गए। मैंने बार बार कहा कि वज़ीर आज़म से मिलने के बाद हम धोखा खा गए। आज 2 बार खा गए, आज भी खा गए। आप मीटिंग में गए, उन्होंने दूसरे दिन 6-1 कर दिया। ना वो नहीं ना, हमें मीटिंग से पहले कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं थी, हमें कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं थी ना कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तकरीबन यकीन था कि वो अपने लिए यूज करेंगे कमीशन का। ना हम बिल्कुल एक ओपन माइंड में गए। हमें मालूम था कि सीट के बंटवारे पे ये लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपनी जगह आपको कहूँ, मैं तब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि अगर 7 सीटों का बंटवारा होना है तो 4-3 पे होगा। नाजरीन, उमर अब्दुल्ला से तफसीली बातचीत आज रात 8:56 पर आप देख सकते हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली के एनसीडीसी ने जम्मू शहर के तालाब टिल्लू और बंद तालाब इलाकों के एक क्लस्टर से 3 केस सामने आने की तस्दीक की है। जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सदन ने बताया कि 30 नवंबर को सैंपल लिए गए थे। उन नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एनसीडीसी दिल्ली भेजा गया था। उन्होंने कहा कि अब पूरे इलाके में आरटीपीसीआर टेस्टिंग करने का हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कोविड से बचाव की एहतियाती तदाबीर और मुनासिब रवैया इख्तियार करें। थे एक क्लस्टर हमारी नज़र में आया जिसमें 11 लोग पॉजिटिव हो चुके थे हजूरी बाग के। उनमें से 2 लोग जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है वो पॉजिटिव आए थे और उनमें ओमिक्रॉन जो है वो कंफर्म हो गया। एनसीडीसी न्यू दिल्ली, नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल न्यू दिल्ली में इसका टेस्ट होता है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, उसमें वो ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए गए। ऐसे ही एक और ओमिक्रॉन वेरिएंट एक सीआरपीएफ में 15 साल की बच्ची बंतलाब की, उसमें भी पाया गया। तो इस चीज़ से ये जो तथ्य ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो गया कि म्यूटेंट प्रोन जो वायरस है नियरली हमारे यहाँ भी जम्मू में भी ये पहुँच है। डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रघुलांगर ने जम्मू शहर के तालाब टिल्लो में ओमिक्रॉन कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। उन्होंने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम उसूलों और ज़ाब्तों की सख्ती से पाबंदी पर जोर दिया है। रघुलांगर ने जम्मू में ओमिक्रॉन पर कंट्रोल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का हुक्म दिया। तालाब टिल्लो इलाके के सरस्वती विहार में नए वेरिएंट के 3 केस सामने आ चुके हैं। सरस्वती विहार इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिए जाने के फौरी बाद रघुलांगर ने इलाके का दौरा किया और तमाम उमूर का मुआयना किया। खानसाब बडगाम के वतरड इलाके में
PDF की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया। इसमें सैकड़ों की तादाद में पार्टी की हामियों ने शिरकत की। हकीम यासीन ने कहा कि हदबंदी कमीशन की तजावीज़ नाकाबिल कबूल हैं। इस एजेंडे से जम्मू कश्मीर के अवाम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने NC और PAGD पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि उन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए यहाँ बरसर इख्तिदार रह चुकी सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। फिरकों को, लोगों को आपस में बांटने का एक तरीका निकाला गया, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की परंपरा है। पहले उन्हीं लोगों ने कहा कि अगर हम इस PAGD में जाएंगे तो हम 365 बिल्कुल इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, मामला कोर्ट में है। तो उस वक्त बाइकाट किया। जिस वक्त जाने की जरूरत थी उस वक्त उन्होंने लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि पार्लियामेंट मेंबरान इसके एसोसिएट मेंबर होते हैं। इस वक्त सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही 3 मेंबरान पार्लियामेंट है जो यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी अच्छे ढंग से उस वक्त करते हैं। उस वक्त उन्होंने दूरी रखी। उन्हें कौन सा मुर्का आज तक सर किया जब से PAGD बना गया? जरा बताए, जो बातें उन्होंने कही, क्या उसमें किसी चीज पर आज तक अमल दरामद हुआ? बल्कि मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ बयान दे दिए, सुबह एक शाम को दूसरा। इसलिए उनका हक बनता है वो क्या करे कौन करे। तो सबों को इसमें अपना रोल निभाने की जरूरत है और हम भी अपना रोल निभाएंगे। बीजेपी जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीर जी सराफ ने कहा है कि हदबंदी के हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी रसाकशी पैदा हो गई है। सराफ ने कहा कि NC के तीसरे मेंबर पार्लियामेंट की मीटिंग में शिरकत न करने से साफ जाहिर होता है कि NC में दरार पड़ गई है। उन्होंने कहा कि इलाकाई सियासी पार्टियों ने जम्मू सूबे के साथ आज तक नाइंसाफ़ी की थी, जो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका कहना है कि बीजेपी दोनों खितों को साथ लेकर UT को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहती है। उधर राजपुरा हल्के के पार्टी कारकुनों के इजलास से अल्ताफ ठाकुर, सज्जाद रैना और नज़ीर अहमद डार ने खिताब किया। एक बात जो बड़ी ज़रूरी है, उसको शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देना पड़ेगा कि उनका तीसरा एक्स ऑफिशियो मेंबर क्यों नहीं था। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस में दरार ऑलरेडी पड़ चुकी है, इसीलिए उन्होंने एक MP को उधर लिया नहीं। अकबर लोन साहब उधर मौजूद नहीं थे। इनको जवाब देना चाहिए कि वो क्यों नहीं था और उसकी क्या राय। जम्मू खित्ते की इन्होंने जम्मू खित्ते के साथ पहले बहुत नाइंसाफ़ी की है, वो हम कोशिश कर रहे हैं रेक्टिफाई हो जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि एक खित्ते को दूसरे खित्ते के साथ हम लड़ाएं। आयुष्मान हेल्थ कार्ड अहम सेहत स्कीम है। यही स्कीम जम्मू कश्मीर में भी ज़बरदस्त रद्दमल दे रही है, लेकिन बाहर की रियासतों में रहने वाले कश्मीरी पंडित जो रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, ये गोल्डन कार्ड हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास मुताल्लिक़ इलाकों में ऐसी सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत की तरफ से आयुष्मान हेल्थ स्कीम के गोल्डन कार्ड जारी करने के लिए लगाए जाने वाले तकरीबन हर कैंप में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में हर रिहायशी को बगैर किसी शर्त के आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी कार्ड दिए जा रहे हैं। कई कश्मीरी पंडित मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा वगैरह में मुकीम हैं, लेकिन इन तमाम माइग्रेंट्स को मुतल्लिका रियासतों में आयुष्मान सर्विस सेंटर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से गोल्डन हेल्थ कार्ड हासिल करने में दुश्वारी हो रही है। अब माइग्रेंट्स ने हुकूमत और रिलीफ डिपार्टमेंट से इस मामले को इंसानी जाविये से देखने की अपील की है। आयुष्मान भारत के जो कार्ड की जो पूरी प्रोसेस है वो ऐसी है कि उसके लिए जम्मू जाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। इनफैक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पैंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कश्मीरी पंडित बिखरे हुए हैं पूरे इंडिया में। उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं कि हम यहीं से वो प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। मे बी सेमी ऑफलाइन या कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस हो, ताकि हमें जम्मू न जाना पड़े ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। हमारी बस एक ही दिक्कत है कि हम जम्मू क्षेत्र के बाहर हैं और
یہاں پہ کوئی سویدھا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ایز سٹیزنس آف جموں کشمیر رجسٹر کر سکیں. تو ہمیں بس گورنمنٹ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ they can help us with some alternative. نیوز 18 اردو کو جموں کشمیر کے باہر سے مقیم کشمیری مائیگرینٹس کی طرف سے کافی کالز موصول ہوئیں کہ وہ اپنے علاقوں میں ایسے مراکز نہ ہونے کی وجہ سے آیوشمان کارڈ سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں. یہ معاملہ سیکریٹری ریلیف و باز آبادکاری کے سامنے اٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر ان ریاستوں میں رہنے والے مائیگرینٹس کی طرف سے اس طرح کے مطالبات آتے ہیں تو وہ بیرونی ریاستوں میں خصوصی آیوشمان کیمپس کا انتظام کر سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پنڈتوں کے مطالبے پر انہوں نے پہلے ہی ملک کے کئی حصوں میں ڈومیسائل کیمپس کا اہتمام کیا ہے اور اس طرح آیوشمان کارڈ جاری کرنے کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. Present Ayushman is being run by the health department and we have requested health department سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ کیمپس آرگنائز کر دیں as far as the migrants are concerned. جہاں جہاں پہ ہمارے مائیگرینٹ کیمپس ہیں وہاں پہ وہ ایک اسپیشل ڈرائیو کے طور پہ جائیں اور لوگوں کو رجسٹر کریں. سو فار آؤٹ سائڈ دا JNK یونین ٹیریٹری ہم نے ریکویسٹ نہیں کی ہے, بٹ سرٹنلی اف دیر آر انف نمبر آف ڈیمانڈز دیٹ آر پروجیکٹڈ ٹو دا ریلیف کمشنرز آفس, اگر آ جاتی ہیں تو ہم ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کو, جس طرح ہم نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے لیے ریسنٹلی کیمپس آرگنائز کیے تھے ان آل دیز میجر سٹیز جہاں پہ کشمیری مائیگرینٹس ہیں, تو اسی طرح آیوشمان کیمپس کو بھی ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کروا سکتے ہیں. بٹ وی ول ویٹ فار دی ڈیمانڈس ٹو کم فرام دا ایریاز, جہاں سے زیادہ آئیں گی پھر وی ول آرگنائز اٹ. ابھی تک جموں, ادھمپور اور دہلی میں رہنے والے مائیگرینٹس صرف اپنی دہلیز پر آیوشمان کارڈ حاصل کرنے کی سہولت سے استفادہ کر رہے ہیں. تاہم جموں کشمیر انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ ملک کی دوسری ریاستوں میں رہنے والے مائیگرینٹس کے اس مسئلے کو جنگی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. نیوز 18 اردو کے لیے جموں سے سمیر بھٹ کی رپورٹ. خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک اور بریک کے بعد. کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گاندربل میں 200 بستروں کے واحد بڑے ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹ ضلع اسپتال میں عملے کی کمی ہے اور OPD میں مناسب کام نہیں ہو رہا ہے. 3 لاکھ سے زائد آبادی کا انحصار اس اسپتال پر ہے اور لوگوں کو طبی ایمرجنسی کی صورت میں دوسرے مراکز کا رخ کرنا پڑتا ہے. لوگوں نے الزام لگایا کہ OPD محدود وقت کے لیے کام کرتی ہے اور وہ حادثات و ہنگامی صورتحال میں علاج کے لیے طویل سفر کرنے پر مجبور ہیں. ایک RTI کارکن کی طرف سے مانگی گئی معلومات کے مطابق ڈسٹرکٹ اسپتال میں 112 ملازمین کی کمی ہے. صحت کے اتنے بڑے ادارے میں CT اسکین کی سہولت موجود نہیں ہے. ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے رپلائی یہ دیا تھا, تو جو ڈیٹا ابھی آیا ہے میرے پاس 112 پوسٹ آر ویکنٹ امپلائی پوسٹ, اس میں سے 4 ہے کنسلٹنٹ فزیشین, 4 ہے سرجنز, 4 ہے گائنی, اور ایسے 4 سارے ڈاکٹر چلتے رہتے ہیں. لیکن شام کو ہمیں کیا ملتا ہے, اگر ہم 6 بجے کے بعد یہاں آتے ہیں, یہاں ڈاکٹر ایک اویلیبل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سرینج انجیکشن کرتے ہیں, گلوکوز لگاتے ہیں, وہ بھی انٹرینڈ ہے. تو یہاں کا آپ دیکھیے پروفیشنلزم اس ہاسپٹل کا کہاں پہنچا ہوا ہے. Already been taken up with the higher authority. It has been written to the director. It has been written to communicate to NRHM also. Through NRHM بھی اگر ہمیں کچھ ملتا ہے. اگر آپ پریکٹیکلی اس وقت دیکھیں گے اسٹاف کی بہت کمی ہے. ہم کو نرسنگ آرڈر بھی کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر کو اتنا رش ہوتا ہے کنسلٹنٹس کو کہ ان کو خود ہی پیشنٹ کی ٹکٹیں بھی پکڑنی ہے. قصبہ شوپیاں میں ٹریفک جام کے حوالے سے نیوز 18 اردو پر خبر نشر ہونے کے بعد ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے. قصبہ شوپیاں میں بڑی مال بردار گاڑیوں کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. میونسپل کونسل کی جانب سے اولڈ بس اسٹینڈ کو کنیپورہ علاقے میں منتقل کیا گیا ہے. اولڈ بس اسٹینڈ کو پارکنگ میں تبدیل کیا گیا ہے. کونسل کے سیکرٹری نے بتایا کہ وہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. This space has been identified by the worthy Deputy Commissioner Shopian. On his directions we are going to اس میں ہم پارکنگ کے لیے جگہ بنائیں گے. لوگوں کے لیے پریشانی جو تھی پارکنگ کا مسئلہ تھا, روز ڈی صاحب کے پاس جاتے تھے, ہمارے پاس آتے تھے. اس کے ازالے کے لیے ڈی صاحب نے ہدایت جاری کیا ہے کہ یہاں یہ پارکنگ کے لیے ایک موزون جگہ انہوں نے قرار دی ہے. اسی پہ ہم آج کام کرنے جا رہے ہیں. جو اس پہ یہ نیوز پہلے بھی نیوز 18 اردو میں بھی آئی تھی کہ اسی کے مادھیم سے ڈی صاحب نے بھی اس پہ زیادہ انیشیٹو لے لیا ہے کہ یہ جو پرابلم لوگوں میں ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے.
आम आदमी पार्टी के कश्मीर ऑब्जर्वर सलाहुद्दीन खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग जज्बाती और खोखली सियासत से तंग आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर एक बड़े बदलाव के मुतमन्नी है। मटन अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद खान ने इन बातों का इजहार किया। उनके हमरा पार्टी के कश्मीर कन्वीनर नासिर अली कोचक और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। कि बाकी जो मसाइल हैं वो जिन लोगों का काम है वो करते रहेंगे, इंशाल्लाह वो भी वक्त आने पे हल होगा। लेकिन एटलीस्ट जो अभी ज़रूरत है यहाँ के अवाम को बिजली की ज़रूरत है, वो भी अच्छी बिजली की ज़रूरत है। यहाँ के अवाम को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यहाँ के अवाम को स्कूल की ज़रूरत है, जो बहुत बुनियादी ज़रूरत होती है। हम उन चीज़ों पे काम करेंगे जैसे हमने दिल्ली में किया है। हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं आती है, हमें मज़हब और ज़ात की राजनीति नहीं आती है, हम इलाकाई राजनीति नहीं करते हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। वही एक मॉडल है हमारे पास, वही लोगों में पेश। सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के जिला सदर सौदागर गुप्ता की निगरानी में विजयपुर ब्लॉक में पार्टी की कमेटी तश्कील दी गई। गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बल पर हुकूमत कायम करेगी। गुप्ता ने कहा कि लोग असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को उनके झूठे वादों के लिए सबक सिखाएंगे। पहाड़ी कबाइल के कॉज को जख्म पहुंचाने वाले बयान देने पर पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने गुपकार अलायंस की मजम्मत की है। उन्होंने गुज्जर बकरवालों और पहाड़ियों के बीच दरार डालने की कोशिश को अफसोसनाक करार दिया और गुपकार अलायंस के बयान को झूठे प्रोपेगेंडे से ताबीर किया है। उन्होंने दावा किया कि गुज्जर बकरवाल कबाइल के कई दानिश्वर और सरकर्दा लीडर पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस देने के हक में हैं। माजी में पहाड़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक और सरासर नाइंसाफ़ी करने वाली हुकूमतों को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। 70 साल यही सरकारें रही, कांग्रेस की, एनसी की, पीडीपी की, इन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए अपना पहला कदम क्यों नहीं बढ़ाया? और अगर ये नहीं कर पाए तो आप ये समझ लें कि आज तक अगर गुजर बकरवाल और पहाड़ियों को कोई लड़वाता रहा, इनमें कोई गैप बढ़वाता रहा, तो ये लोग ये पार्टियां इसकी जिम्मेवार हैं। आज गुपकार अलायंस ये कह रहा है, ये लड़ाया तो जो पहले सरकारें रही उन्होंने लड़ाया इन सबों को, क्योंकि उन्होंने हक नहीं दिया, एक को दिया दूसरे को नहीं दिया। और जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जिस वक्त भी इलेक्शन होता था, उनका मैनिफेस्टो में पहला नाम जो होता था पहाड़ियों का होता था कि इनको शेड्यूल ट्राइब देना है, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते थे। फॉर्मेलिटी के तौर पर वो यहाँ से फाइलें भेजते थे दिल्ली में, वहाँ डस्टबिन में पड़ी रहती थी। वो कहते थे कि इसको। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में आज ठेकेदारों ने इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। ये लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि पिछले कई महीनों से वो काम के एवज रुकमात से महरूम है। इसकी वजह से वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी रुकमात को वागजार किया जाए। मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे सब डिवीजन टंगधार में हमने काम किए और यहाँ से बिलें हमारी पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया ट्रेजरी के ऊपर पड़ी हुई हैं। जिसका ट्रेजरी वाले के पास जाते हैं वो बोलते हैं हम रोज़ डिमांड करते हैं और सरकार पैसा नहीं छोड़ती है। हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए और ये हमारा एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कम से कम जो भी बिलें हमारी गई हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, जबकि पहले एक दिन। कुपवाड़ा जिले के लचमपुरा राजवाड़ हंदवाड़ा के लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट के सामने खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि वो 2 साल से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। उनका कहना था कि अगर कई बार उन्होंने ये मामला मुतल्लिका महकमे के साथ उठाया, लेकिन यकीन दहानियों के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। महल यमन दोन 2 वरी गए टोटल आब ना आसनस 2 वरियन तान आव ना मतलब गसान मुलाजिमस गसान PhD किस कंस तम सनिस कुन कह गोरे करान कह तुम आब या कह गोरे टोटली करान ओकुन कह सर रोड बिल्कुल खस्ता हाल हॉस्पिटल सर आज वनस मौसम ठीक ये मौसमस मज हेकान तो डॉक्टर सबस ये कहीं अगर सह यी कुन वजन अटेंडेंस कर सब कर पता लगा कि सह कवर आमुत तो सह कवर द्रामुत ब्या हॉस्पिटल सर आज बनोमुत 2 बिल्डिंग सर तथ सर दरवाजा वहीं तक खोलने की सर तक। पुंछ में महकमे सेहत में काम कर रहे HDF मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने माहाना वक्त पर तनख्वाह को 2000 से बढ़ाकर माहाना 6700 करने और नौकरियां मुस्तकिल करने के मुतालबात उजागर किए। इन ड्राइवर्स ने कहा कि उन्होंने कोविड में भी अपनी जानों के
परवाह किए बगैर लोगों की खिदमत की। LOC पर गोलाबारी के दौरान भी उन्होंने कई कीमती जानों को बचाने में अहम रोल अदा किया। 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई पैसा नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है। अगर हमारा हल नहीं होगा तो हम गाड़ियाँ खड़ी करके कल रोड पे आ जाएंगे। तो जब तनख्वाह का मसला आता है तो भाई सब सेंटर से लो, PSC लो, PSC सब सेंटर में रिन्यू है ही नहीं है। PSC में भी गांव में जो PSC है वहाँ क्या है, दिन में कम से कम 50 या 100 रुपये आता है, तो हमें वो डॉक्टर कहाँ से तनख्वाह देंगे? हमारी इतना कुछ यहाँ जो हमारे ड्राइवर हैं, हमारे जो बाद में काम कर रहे हैं, उनको 750 रुपये दे रहे हैं, लेकिन हमें 2000 भी नहीं मिल रही है। जो ड्राइवर है ये लगे हुए हैं इसमें SGF में, तो उसमें सिंपल एक कि जितना हमें रेवेन्यू जनरेट होगा उसी हिसाब से हम इनको सैलरी देते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। अब बढ़ाना उससे ज़्यादा बढ़ाई हमारे लिए ना हमारी। कश्मीरी पंडित क्रिकेट प्रीमियर लीग आज जम्मू में इख्तिताम पजीर हो गई। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज धर मेहमान खुसूसी थे। फाइनल मैच जम्मू की क्रिकेट टीम AAPCC ने जीत लिया। उन्होंने दिल्ली की टीम रूट्स ऑफ चिनार को शिकस्त दी। मेहमान खुसूसी ने जीतने वाली टीम और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। LG मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में इस टूर्नामेंट के इनकाद पर मुंतजमीन की सताइश की। मुंतजमीन का कहना है कि नौजवानों को मनशियात से दूर रखना इन मुकाबलों का बुनियादी मकसद है। मुंतजमीन के मुताबिक उन्हें हर तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में तो आपको पता है कि यंगर जनरेशन को इस लाइन में इस तरह की उनकी एनर्जीज चैनलाइज हो जाती हैं और वो अपना ओवरऑल एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उनके जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। मुझे खुशी है कि यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस टूर्नामेंट का आयोजन। मोबाइल पे रहना, PUBG खेलना, आउटपुट ना रहना और बॉडी बिल्कुल ही लेथार्जिक रहना और बिल्कुल ही अनहेल्दी हो जाना, तो स्पोर्ट्स एक माध्यम बनता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, एफिशिएंसी बिल्ड करने का और हेल्दी भी रहने का। तो मैं इनका शुक्रिया करना चाहूँगी, उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया। तो दोनों ने ही काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिया, लेकिन लास्ट में APCC ने 12 ओवर में ही मैच क्लोज कर दिया। तो जो अब SKPPL सेकंड एडिशन के विनर्स हैं, मैं ये सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो ये टूर्नामेंट रहा ये बड़े बिग स्केल पर क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पूरे जम्मू एंड कश्मीर में पहला टूर्नामेंट है जो लाइव। नेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में लद्दाख की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुर्तज़ा अली खुदाम का हज़ारों लोगों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। LG लद्दाख ने अपने ट्वीट में लद्दाखी टीम की शानदार कारकर्दगी की सताइश की और बिलखुसूस मुर्तज़ा अली खुदाम की तारीफ की। करगिल में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के CEC फेरोज अहमद खान ने टीम को मुबारकबाद पेश की। LG साहब का बहुत मशकूर मानूँ कि हौसला अफजाई के लिए उन्होंने ट्वीट करके और आने वाले वक्त में वो लोग इन लोगों के लिए ऐसे फेडरेशन के लिए फंड्स हो या जो भी इनको चाहे वो इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। हमारे लिए तो एक प्राउड मोमेंट ही है। हमारे गाँव के लिए आपने खुद देखा कि इनका रिसेप्शन इतना अच्छा हुआ और बहुत सही हुआ। जो फेडरेशन है उनका हेड उन्होंने भी बोल लिया है कि हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट और लद्दाख के लिए हम लोग 100% आके फाइट लड़ा देंगे और उसमें फाइट करवा देंगे, इवेंट रखेंगे। क्या है कि 18 स्टेट या 19 स्टेट इधर आके हम लोग को फाइट दिखाना है। कश्मीरी ज़बान के मशहूर शायर व कलमकार मरहूम अमावार की याद में बिजबिहाड़ा में मरकज़ी अदबी संगम की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। कई शुआरा, अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। एक मुशायरे का भी एहतमाम हुआ। कश्मीरी अदब के तईं अमावार की खिदमत पर भी रोशनी डाली गई। अमावार की शेरी मजमूए कुलियात वार की भी रस्म अजराई अंजाम दी गई। इस किताब को उनके फर्जंद विलायत हुसैन वार ने तरतीब दिया है। अदब भी इसमें अपना काम कर रहा है, तो अम्मार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपना कुलियात जो उनका है उसमें जितने कलाम उन्होंने लिखा है कश्मीरी ज़ुबान में, वो तो कश्मीरी ज़ुबान के लिए बहुत बड़ी खिदमत है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो बाकी अदीब कर भी रहे हैं और जो पुराने हमारे सूफ़ी बुज़ुर्गों ने किया है। उनके साथ ही उनकी कड़ी हैं जो आगे आगे आ रही हैं। आज भी हमारे बहुत से सूफ़ी शोरा हैं
اور हमारे साथ भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो कश्मीरी ज़बान के हवाले से ये एक बहुत खुशाइंदा बात है कि कश्मीरी ज़बान में अदब लिखा जा रहा है और वो लोगों के सामने आ रहा है, तो ज़बान को तो यकीनन फ़ायदा हो रहा है। टाउन हॉल तराल में एक मेगा ब्लॉक दिवस मुनक्किद हुआ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी, एसपी अवंती के अलावा डीडीसी मेंबरान, पंच, सरपंचों और लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। कस्बा तराल, आरिपुल और डाटसरा ब्लॉकों के वफूद ने मुतल्लिका इलाकों के मसाइल उजागर किए। डिविजनल कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि वो जायज़ मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का जायज़ा लिया। ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपुरा के साबिक सदर मोहम्मद यूसुफ परा और दीगर कुछ दुकानदारों ने ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपुरा के चुनाव जल्द कराने को कहा है। मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक इस वक्त दुकानदार कई मसाइल से दो चार हैं, इसलिए फेडरेशन के चुनाव जल्द होने चाहिए। उधर इलेक्शन कमीशन बोर्ड के चेयरमैन रईस अहमद मागरे का कहना था कि बांडीपुरा में हालिया नामसाइद हालात की वजह से इंतखाबी अमल में ताखीर हुई है। हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट का इंतखाब होना अब ज़रूरी बन गया है, क्योंकि पहली ट्रेडर्स फेडरेशन ऑलरेडी तोड़ दी गई है। अब हमने एक इलेक्शन सेल कायम की थी बांडीपुरा में, उनसे कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि यहाँ दुकानदारों के काफ़ी अपने मसाइल हैं। उनका अजाला करने के लिए ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर का होना काफ़ी लाजमी है। हम चाहते हैं जल्द इलेक्शन हो जाए और हमारा ये मसला हल हो जाए। मेहरबानी करके हम इंतज़ामिया से, अपने डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस चीज़ पे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। लेह में दरियाए सिंध पर शजरकारी मुहिम शुरू की गई और दरिया के बाएं किनारे पर पेड़ लगाए गए। महकमे आपाशी और फ्लड कंट्रोल ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ताउन से ये मुहिम शुरू की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। 3 अक़साम के पौधे लगाने के इस प्रोग्राम में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर PWD मेहमान खुसूसी थे। स्कास्ट शामा की जानिब से जिला गांधरबल में वाक़ शामा कैंपस में साइंस अड्डा उन्वान से यूथ इंटरेक्टिव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में इसका इनेकाद किया गया। शोबे वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ने इसका इनेकाद किया। वेटरनरी साइंस की अहमियत पर रोशनी डाली गई। जिला गांधरबल और श्रीनगर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सुपुर में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया। रियाजी के कौमी दिन की इस तकरीब में मेहमान खुसूस की हैसियत से DC बारामूला मौजूद रहे। चीफ एजुकेशन अफसर के अलावा दीगर मौज़िज़ीन भी शरीक थे। स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में रियाजी और उसके किरदार के बारे में बेदारी पैदा करना इसका मकसद था। मुकर्रिरीन ने कहा कि रियाजी मज़मून को मुंतखब करके तलबा अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी काम कर सकते हैं। तलबा की दिलचस्पी के लिए यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। ऑर्फन नेड ऑर्गेनाइजेशन ने उमराबाद HMT श्रीनगर में बेवाओं, यतीमों और गरीबों में कंबल और खाने पीने की अशिया तकसीम की। ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन शेख अनीस मूसा ने इन लोगों में ये सामान तकसीम किया। ये तंजीम यतीम बच्चों के बैंक खातों में माहाना 1700 रुपये बतौर स्कॉलरशिप फराहम करती है। ज़रूरतमंद बेवाओं के लिए रिहायशी मकानात भी तामीर किए जाते हैं। महेंद्रपुंज में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रिवायती हैंडलूम को फ़रोग़ देने की गर्ज से इसका इनेकाद किया गया। DC की हिदायत पर महकमा हैंडलूम और महकमा इंडस्ट्री ने इसका अहतमाम किया। शाल, कंबल और लोहिया बनाने वाले 100 से ज़्यादा कारीगरों ने शिरकत की। कारीगरों को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। सरकारी इमदाद और लोन के हवाले से भी जानकारी दी गई। शोपियां के स्केट टीम को कौमी मुकाबलों के लिए रवाना कर दिया गया है। फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल्स ने झंडी दिखाकर 15 खिलाड़ियों की टीम को रवाना किया। गोवा में इसके नेशनल मुकाबले 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक होंगे। शोपियां टीम ने कौमी मुकाबलों में हिस्सा लेकर अच्छा मुजाहरा करने और अपनी सलाहियतें निखारने की बात कही है। टीम के कोचेस और खिलाड़ियों ने टीम को स्पॉन्सर करने पर इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कोविड के खतरात के मद्देनजर एहतियाती तदाबीर और मुरतब शुदा रहनुमा खतूत अपनाने की तलकीन की है। अनंतनाग के सिरगुफारा इलाके में मेगा ब्लॉक दिवस में शिरकत के बाद सिंगला ने इन बातों का इजहार किया। लोगों ने तामीर और तरक्की और दीगर मसाइल उनकी नोटिस में लाए। DC ने मुतल्लिक़ अफसरान को इन मसाइल का फौरी नोटिस लेने की हिदायत दी।
गगरून शोपियां में मुनक्किद ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सचिन कुमार वैश्या शरीक रहे। उन्होंने जिला इंतजामिया की तरफ से इस इलाके के आवाम को दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की। पानी, बिजली, सड़क, ट्रांसपोर्ट, राशन, सेहत के लिए कई मसाइल लोगों और मुताल्लिकीन ने उठाए। डीडीसी ने पिछली बार उठाए गए मसाइल पर की गई कार्रवाई का भी जायजा लिया। गुड गवर्नेंस वीक के तहत जिला कठुआ के बरनौती ब्लॉक में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम में ACR कठुआ शरीक रहे। उन्होंने आवाम और अवामी नुमाइंदों के मसाइल को सुना। बरनौती ब्लॉक के BDC चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह ने कहा कि हुकूमत ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करा के आवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी सतह पर किसी किस्म की तरक्की नहीं हुई। पहले मुनक्किदा प्रोग्रामों में भी वो सरकारी इंतजामिया को अपनी परेशानियों से वाकिफ करा चुके हैं और ऐसे प्रोग्राम पूरी तरह फ्लॉप हैं। अखनूर के खोड़ ब्लॉक में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सरकारी स्कूलों में बच्चों के इंदराज को बढ़ाने की गर्ज से इस तरह के प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जा रहा है। ZEO खोड़ सुदर्शन कुमार का कहना है कि लोगों को मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमों के बारे में इजलास को आगाह किया है। उधमपुर के सोई गांव के लोगों ने किलवेस्ट प्रोजेक्ट को उनके गांव से दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके गांव में कचरे का अंबार जमा हो रहा है और मकामी लोग ताज़ा हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं और बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पूरे इलाके में बदबू फैल रही है। म्यूनसिपल डिपार्टमेंट उधमपुर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने कहा कि जो लोग सोई गांव में रहते हैं उनके मुतालबात हकीकी हैं, इसलिए इस मसले को हल करने के लिए नया प्रोजेक्ट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का टेंडर जारी करने जा रही है। इससे जो है वो डेंगू मच्छर वगैरह जो फैल सकते हैं, जिससे हम बल्कि बहुत सी बीमारियां आ सकती हैं इससे। ये हमारे यही मांग है कि इस प्लांट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। डर तो लगता है, लेकिन अब हम भी इधर ही इनके गाँव इनके साथ ही रहते हैं। 2-3 मीटिंग कर दी है इन्होंने भी, यही सोच रहे हैं कोई हल होगा इसका। हमारे जो डायरेक्टरेट में कंसल्टेंट्स हैं रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उनको बुलाया है और प्रॉपर वो हमें जो भी पुराना वेस्ट पड़ा हुआ है, जिसकी मेन इशू जो लोग बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, लीचिंग हो रही है या कुछ मक्खियां मच्छर जो भी उस कूड़े के ढेर से थ्रू आउट द इंडिया आपने देखा होगा बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ही नहीं है, थ्रू आउट J&K है, इंडिया में काफ़ी जगहों पे ये प्रॉब्लम है। इसी के रेजोल्यूशन के लिए हमने ये इतना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट MRF लगाया हुआ है। आलमी मयार के बुनियादी ढांचे के साथ तरजीही बुनियादों पर खेलों को फरोग देने की हुकूमत के बुलंद बांग दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि सुपुर टाउन में 4 साल गुजरने के बाद भी इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम तकमील का मुंतजर है। स्टेडियम की तकमील न होने से इलाके में मौसम सरमा में खेलों की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर होंगी। हुक्काम की जानिब से इस स्टेडियम की तामीर शुरू होने पर कस्बा और मुहल्लिका इलाकों के नौजवान खुश थे, लेकिन तामीराती काम बगैर किसी वजह के बंद होने से नाराज हैं। नौजवान हुक्काम से तामीराती काम में तेजी लाने की अपील कर रहे हैं। गवर्नमेंट से कि ये जो इंडोर स्टेडियम है इसको आप ठीक करें, इसको आप बनाए बिल्ड करें, ताकि हम विंटर्स में भी अपनी कंडीशनिंग की बॉडी की जो है कंटिन्यू कर पाए और खेल पाए, क्योंकि यहाँ पे जो विंटर की वजह से हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। कुछ 4 साल हो गए इसको बनाते हुए इंडोर स्टेडियम को, तो अभी भी आप इसकी हालत देखिए क्या हालत हो रखी है। ये सिर्फ दावे ही होते हैं सर, करने को कुछ नहीं वो करते हैं सर। सर आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके सामने सर। ये बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी, इसको 4 साल हुए। जो पैसे आते हैं वहाँ से पता नहीं वो कहाँ जाते हैं सर। एक्शन लेना चाहिए सर, जल्द से जल्द इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए सर, क्योंकि आने यहाँ से विंटर्स भी। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।